गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स स्टैंडर्ड 12 साइंस, उसमें चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टुडे वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 6.4। A rectangular wire loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. So what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and shorter side of the loop, and for how long does the induced voltage last in each case? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे हमने दो फिगर ड्रॉ किए हैं, ए एंड बी। ए में क्या लिखा है? मूव्स ऑन द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड। तो ये जो डायग्राम है वो ए होगा और इसको हम बी कंसिडर करें। लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। Magnetic field is 0.3 Tesla and velocity is 10 raised to minus 2 meter per second. 1 centimeter per second means 10 raised to minus 2 meter per second. Area क्या होगा? Length L cross breadth 8 to the 16 minus 2 minus 2 minus 4 meter square. Now for a diagram, if loop moves to the longer side, ये longer side है, moves to the longer side, so EMF E is equals to BVL. BVL. तो magnetic field is 0.3 Tesla, velocity is 10 raised to minus 2 and length is 8 centimeter. तो 8 into 10 raised to minus 2, तो EMF is 0.24 millivolt. So time is length upon velocity. Velocity is equal to distance upon time. So time is equal to distance by velocity. कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो ब्रेथ जितना, यानी b बाई वी। ब्रेथ 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 एंड वेलोसिटी इज 10 रेज़ टू माइनस 2, सो टाइम इज 2 सेकेंड। नाउ फ्रॉम बी डायग्राम, इफ लूप मूव्स टू द शॉर्टर साइड, तो EMF इक्वल्स टू BVD, सॉरी BVL, बट यहाँ पे L की जगह हम क्या लिखेंगे? B, ब्रेथ। वैल्यू पुट करो तो EMF इज 0.06। टाइम t इक्वल टू लेंथ बाय वेलोसिटी L बाई वी, 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 एंड तो 8 सेकेंड। मीन्स होगा क्या? जिस डायरेक्शन में आप परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल मूव करवा रहे हो, तो यहाँ पे L, यहाँ पे B और B की जगह L, ये चेंज होगा। तो ये दोनों केस पर से दो डायग्राम और दो आंसर। नेक्स्ट exercise 6.7. A horizontal straight wire, length is 10 meter, long extended from the east to west, is falling with the speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal components of the earth magnetic field. Horizontal component of earth magnetic field means BH, H for horizontal component, 0.3 into 10 raised to minus 4 Tesla. So what is the instant value of EMF? तो E is equals to BVL। तीनों वैल्यू यहाँ पर है, सब्सटीट्यूट करो तो आंसर इज 1.5 into 10 raised to minus 3 volt. Second is what is the direction of EMF? So magnetic force का फॉर्मूला QE क्रॉस B, चैप्टर नंबर 4 में आता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QV क्रॉस B, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस आता है, माइनस अंदर दे दो तो B क्रॉस V हो जाएगा, V क्रॉस B की जगह। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन डायरेक्शन ऑफ EMF इज वेस्ट टू ईस्ट। अगर EMF की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी मीन्स वेस्ट इज अ हायर पोटेंशियल एंड ईस्ट इज द लोएस्ट पोटेंशियल। सो वेस्टर्न एंड ऑफ वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Higher electric potential is which end? तो western end of wire is a higher electric potential and east is a lower potential.
Next, most important topic, inductance. An electric current can be induced in a coil. Electric current can be induced in a coil by flux change produced by another coil. In its flux change produced by the same coil, then two situations are described separately in the next two subsections. दो केस हम आगे पढ़ेंगे. एक क्या है, एक कॉइल है. ये कॉइल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे. इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कॉइल, so magnetic field produced around it according to Ostrom equation. If electric current passing through the coil and magnetic field can be produced, तो आप करंट में चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा एंड इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. और दूसरा केस ऐसा है कि हम सिस्टम के अंदर दो कॉइल ले रहे हैं, फर्स्ट कॉइल एंड सेकेंड कॉइल. फर्स्ट कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओ. इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल. एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल, so some magnetic field lines link with the second coil. Some magnetic field lines link with the second coil. अगर आप फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लिंक विद द सेकेंड कॉइल, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंड कॉइल. तो फर्स्ट एक केस के अंदर फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, एक ही कॉइल होगा, सब उसमें ही होगा, करंट उसमें ही फ्लो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसमें ही फ्लो प्रोड्यूस होगा. और सेकंड केस के अंदर दो कॉइल हम लेंगे. फर्स्ट में से आप करंट फ्लो करवाओ, फर्स्ट के अंदर करंट चेंज करो तो सेकंड के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा इन सेकंड कॉइल. तो इसीलिए यहां पर लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज produced by another coil. In its flux change produced by the same coil, their two situations are described separately in the next two subsections. In both cases, the flux through a coil is proportional to the current. Flux is directly proportional to the current. Means electric current change होगा तो flux change होगा. दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन ले लो तो डिवाइडेड बाई dt dt. तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स n, सो फॉर्मूला इज n phi b proportionality t. phi b मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो n phi b इज इक्वल टू li. तो कैपिटल L इज इक्वल टू n phi बाय I. कैपिटल L इज इक्वल टू n phi बाय I. व्हाट इज L? Inductance, self-inductance. Inductance is a scalar quantity, and inductance depends on shape of coil and properties of given material. Inductance depends on shape of coil and properties of material. Unit is Weber per ampere and second unit is Henry. Dimensional formula m1 l2 t minus 2 a minus 2. m1 l2 t minus 2 a minus 2. Different two types of inductance, self inductance and mutual inductance. जैसे मैंने आगे अभी ड्रॉ किया था डायग्राम, वैसे सब कुछ एक ही कॉइल में हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस, और उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और सेकेंड सेक्शन के अंदर दो कॉइल हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इंडक्टेंस होगा इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव डिस्कस अ म्यूचुअल इंडक्टेंस. हियर डिफरेंट टू कॉइल्स आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस, coil C1 and C2. First coil connect with galvanometer and second coil connect with the battery.
if electric current passing through the second coil, if electric current I2 passing through the second coil, so some magnetic field lines link with the first coil, and if some magnetic field lines link with the first coil, so galvanometer becomes changed. Galvanometer can be deflected, means electric current produced in the wire. यहाँ पे जो करंट फ्लो करवाओगे, यहाँ पे जो करंट चेंज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स चेंज. If magnetic field lines link with the first coil becomes change, so induced electric current passing through the first coil becomes change. Means phi 1 proportionality I2. phi 1 proportionality I2 है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट हमने किस में फ्लो करवाया? सेकेंड कॉइल के अंदर. फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल is directly proportional to electric current passing through the second coil. Proportionality sign हटाओ तो n phi 1 is equals to m21 I2. So m12 is equals to n1 phi 1 by I2, means mutual inductance of first coil. Mutual inductance of first coil with respect to second coil. And same as mutual inductance of second coil with respect to first coil is denoted by M21. तो just like this formula क्या होगा? M21 is equal to N2 phi 2 by I1. N2 phi 2 by I1. What is mutual inductance? The mutual EMF generated in one of two coils due to a unit rate of change of electric current in the first coil. So it is called mutual inductance. म्यूचुअल ईएमएफ किस में जनरेट हुआ? फर्स्ट के अंदर. किसकी वजह से? करंट के चेंज की वजह से. किस में करंट चेंज किया? सेकंड कॉइल के अंदर. इसलिए यहां पे लिखा है द म्यूचुअल ईएमएफ जनरेट इन वन ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ऐसा जरूरी नहीं कि इसके साथ आप बोलो कि सर इंटरचेंज करो, बैटरी यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा. बैटरी यहाँ पर ज्वाइन करो, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ज्वाइन करो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम, वेबर पर एम्पियर. हेनरी डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 -2, 1 2 -2 -2. म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन shape of coil, dimensions and number of turns. उसके अंदर फिर से डेरिवेशन करो, तो n d5 by dt means E according to Faraday's law. So E1 is equal to minus m12 into di2 by dt. इसमें म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ किस में जनरेट होगा? फर्स्ट कॉइल के अंदर. तो E1 अगर M21 इज इक्वल टू N2 phi 2 by I1 है, तो फॉर्मूला होगा E2 इज इक्वल टू माइनस M21 di1 by dt. तो ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस.